Good morning, class 12th. We are discussing chapter 5. So let's continue our chapter. We have discussed types of organization, functional and divisional in our previous session. And one more type was there, formal and informal, but now it has been deleted from your course. Okay, so after that type of organization, these two concepts are left only in your chapter: delegation of authority and decentralization, and difference between both of them. Okay, so today we will be discussing delegation of authority. See, in every organization, the boss sometimes, when he gets overburdened or when workload of a person becomes beyond his capacity, then delegation of authority means transfer of the work. Okay, delegation of authority में क्या होता है, जो overburdened है, वर्कलोड जो ज़्यादा है, तो कुछ वर्क किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया ताकि थोड़ा सा वो उसका बर्डन रिमूव हो सके. ओके, ओवरबर्डन जो है वो थोड़ा सा बर्डन उसका लेस हो सके. बट in this delegation of authority, work is transferred, not the accountability. This is the main concept is coming out from here. So please do not forget that in delegation of authority, work is transferred, not accountability. Accountability means answerability. So answerability transfer नहीं होगी. Okay, it would remain on the person who is transferring the work. Suppose A is boss and he is transferring his some work to B. Okay, but when ultimate responsibility would come, means when A is boss, suppose B has done some mistake which A did not notice, and A has submitted the report made by B to his boss O. Okay, O is his boss and he has submitted to him. Now the mistake which was made by B, but B would ultimately not responsible. He has passed on his work to A. It was A's final responsibility to check his work, because it is the delegation of authority means वर्क उसने ट्रांसफ़र किया है. जो अकाउंटेबिलिटी इस वर्क से जो कनेक्टेड है, उससे जो जुड़ी हुई है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती. ओके, सो अल्टीमेटली A will be accountable for his work. So delegation of authority can be defined as a process of entrusting. Entrusting means to hand over responsibility and authority to the subordinate. Okay, hand over authority and responsibility to subordinate. Okay, then another meaning is and creating accountability on those who entrust authority and responsibility. वर्क इसने हैंड ओवर किया है, बट ये अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है किस पे? ऑन दोज हु एंट्रस्ट द वर्क. तो जो वर्क को एंट्रस्ट करते हैं, हैंड ओवर करते हैं, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ही होती है. इन सिंपल वर्ड्स, delegation refers to downward transfer of authority from superior to subordinate. Okay, downward transfer of authority का downward transfer ये होता है downward transfer. और अगर ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है किसी चीज़ का, तो ये upward transfer है. ठीक है, मीन्स क्योंकि यहाँ पे सबॉर्डिनेट है और यहाँ पे बॉस है, तो सबॉर्डिनेट से बॉस को जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये तो अपवर्ड ट्रांसफ़र है, और जब बॉस से यहाँ पे सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये डाउनवर्ड ट्रांसफ़र है. ओके, सो
The person who delegates is known as delegator, and on whom the work is delegated, he is delegatee. He is delegatee, and the person who delegates, delegator. Okay, and this concept is based on division of work. Okay, now one important thing is here, that is manager remains accountable even after delegation. Delegation does not abdicate, means give up manager of his responsibility. डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि मैनेजर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही गिव अप कर देनी है. नो, ultimate responsibility or the accountability would be of managers who has delegated the work. Okay, now elements of delegation. अब एलिमेंट्स क्या आते हैं, इसमें मेनली 3 बातें जो इम्पोर्टेंटली जो डिस्कस की जाती हैं, और यही जो कंसेप्ट है वो पूछा भी जाता है और बहुत ही इजी है. इसको किसी भी चीज़ से क्वेश्चन आ सकता है. एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन भी हो सकता है या प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन. ओके, कुछ भी हो, हैं यही 3: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. अब अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन. ठीक है, इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ओके, इतना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली हमने पढ़ा नहीं है कंसेप्ट, बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज क्रिएटेड डेलिबरेटली, जिसको कि जानबूझ के क्रिएट किया गया है. ठीक है, अब जैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स एक कंपनी है सपोज, तो वहाँ पे कि कितने डिपार्टमेंट होंगे, कितने डिपार्टमेंट में मैनेजर्स होंगे. ठीक है, मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3 होंगे. ठीक है, और मैनेजर के नीचे कितने सारे सबऑर्डिनेट्स होंगे. तो ये एक और इसके ऊपर कौन होगा, वो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा. ठीक है, और ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे. तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे कि डेलिबरेटली क्रिएट किया गया है. ठीक है, इसको ऐसे नहीं है, और इस स्ट्रक्चर में हर एक को अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग अपने से जो सबऑर्डिनेट है उनसे डील करना होता है. बट जैसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या अगर हम समझें, तो जैसे एक बॉस और एक अथॉरिटी है, सॉरी एक बॉस और एक सबऑर्डिनेट है. ठीक है, वो दोनों कहीं पे टी टाइम में, जैसे लंच टाइम में, वो दोनों एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं. ओके, लंच. तो इट मीन्स वो लंच जब करेंगे और वहाँ पे वो अपनी बिजनेस, मतलब अपने जॉब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स अगर डिस्कस करते हैं. ओके, दे डिस्कस सम इश्यूज, सम प्रॉब्लम्स, सम टॉपिक्स रिलेटेड टू देयर जॉब. ओके, बट देयर दे बिहेव इनफॉर्मली. बट वो दोनों, एक बॉस है और एक सबऑर्डिनेट है, बट वहाँ पे लंच टाइम में वो लोग इनफॉर्मली वो बिहेव करते हैं. इनफॉर्मली मीन्स कि बहुत ही मज़े से उस समय वो भूल जाते हैं कि कौन बॉस है और कौन सबऑर्डिनेट है. तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है. ओके, सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच इज क्रिएटेड डिलिबरेटली. ओके, सो अथॉरिटी अराइजेज और originates from an individual's position. ओके, अथॉरिटी उसमें क्या आती है, इंडिविजुअल की पोजीशन से क्रिएट होती है. सपोज वो सबऑर्डिनेट है तो उसकी अथॉरिटी, उसके पास बहुत ना के बराबर अथॉरिटी होगी. पर अगर कोई बॉस है तो बॉस की अथॉरिटी सबऑर्डिनेट से ज़्यादा होगी. इट अराइजेस फ्रॉम स्केलर चेन. स्केलर चेन हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, वेयर ईच एंड एवरी एम्प्लॉई इज supposed to communicate in a given chain of authority and responsibility.
if they are breaking that chain, it means they are not following this principle or not following the scalar chain, okay, which they are supposed to follow. Here authority must be equal to responsibility. So authority means दो तीन चीज़ें हैं, मेनली ध्यान रखो. पावर टू टेक डिसीजन, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके, एंड अराइजेस फ्रॉम स्केलर चेन. ठीक है, तीन चीज़ें, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और जहाँ अथॉरिटी है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा इक्वल होगी. ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी तो बहुत ज़्यादा है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और अथॉरिटी कुछ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता. तो ये दोनों हमेशा इक्वल चलते हैं, है ना. मस्ट बी इक्वल टू अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब सेकंड जो एलिमेंट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट मीन्स द वर्क असाइंड टू एन इंडिविजुअल. ओके, किसी को क्या काम दिया गया है, जैसे आपको अभी आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दिस इज द वर्क असाइंड टू ईच इंडिविजुअल. देन इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड जॉब. ऑब्लिगेशन मीन्स उसकी ड्यूटी है सबऑर्डिनेट की टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड जॉब. ठीक है, यहाँ पे अभी जैसे आपका ऑब्लिगेशन है टू टाइमली सबमिशन ऑफ योर एक्टिविटी. Then next is it arises from superior subordinate relationship and it flows upward. Authority हमेशा downward flow करती है, responsibility हमेशा upward flow करती है. ठीक है, और यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी, और ये डायग्राम आप बना सकते हैं एग्ज़ाम में, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो दोनों हैं ये इक्वल होती है. किसी का एक का पलड़ा भारी नहीं होता है. ओके, सो इफ अथॉरिटी ग्रांटेड इज मोर इट मे लीड टू मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. ओके, एंड इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड इज मोर इट मे मेक अ पर्सन इनइफेक्टिव. ठीक है, तो उससे इनइफेक्टिव हो जाएगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसके मन में बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी आ जाएगी कि सिर्फ काम ही काम देते हैं, कुछ पावर तो है ही नहीं मेरे पास. ठीक है, नाउ द थर्ड एलिमेंट इज अकाउंटेबिलिटी. इट मीन्स सबऑर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क. ठीक है, सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो नॉन कंप्लीशन के लिए आंसरेबल हैं. ठीक है, वंस अथॉरिटी डेलीगेटेड it doesn't mean that accountability is also delegated. फिर डेलीगेशन का मतलब तो ये होता है कि आंसरेबिलिटी, जिसकी भी अकाउंटेबिलिटी है वो आंसरेबल है. ठीक है, बट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो कंसेप्ट है इसका मतलब ये नहीं होता कि अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट हो गई है. इफ द सबऑर्डिनेट फेल्स टू परफॉर्म द delegated work, the superior is only accountable. ठीक है, ये मैंने पहले ही समझा दिया था that if A, B और O के एग्जाम्पल से B अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसके लिए A रिस्पॉन्सिबल होगा ना कि B, क्योंकि A ने वर्क डेलीगेट किया था B को, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं हुई थी, वो A की ही रहेगी. ठीक है, फिर subordinate will be accountable to his superior only, है ना. So final conclusion is drawn out here. Authority can be delegated but accountability cannot. Okay, इससे केस स्टडीज भी आती हैं, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में कहीं कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं है. यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड. ओके, नाउ this advantages of delegation, okay, we will discuss in our next session. Till then, goodbye, thank you.